नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस जो आपका विषय है उसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यही है ना आपका पहला चैप्टर। सबसे पहले हमको इनका मीनिंग जानना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। प्रोडक्शन का मीनिंग तो आप जानते हैं, उत्पन्न करना। Everything that we cultivate वो सब चीज जो हम खेतों में उपजाते हैं। Every plant that we cultivate in crop fields by the process of agriculture are collectively known as crops. Why do we grow crops? Why do we produce crops? This is a question. And next topic, management. Management is the manner in which we manage production of crops. How we may produce crops in such an amount that can fulfill the need of ever increasing population. ये अनवरत बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत पूरी करने लायक फसल हम कैसे उगाएं, कौन कौन से उपाय करें कि हमारा खर्च कम हो, हमारी मेहनत कम लगे और उपज ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो। इन सब कामों को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से करने को ही प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। दिस मीन्स डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द फंक्शंस related to producing crop in the crop field in systematic manner, in scientific manner, without polluting the environment, and also in the manner to fulfill the increasing demand of increasing population, ever increasing population. मतलब एक तरफ जहाँ हम वातावरण को बिना प्रदूषित किए, बिना उनमें कोई अवांछित तत्व लाए, बिना उनको खराब किए, और दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने लायक उत्पादन करने के लिए जो भी तरीके हम अपनाएंगे उन्हीं को बोलेंगे मैनेजमेंट। ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप्स, अब समझिए। क्रॉप्स प्रोवाइड food, and food is the only source of energy, only source of all the essential components which are required in the body for growth and development of all living beings. सारे जीवों को जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उसका एकमात्र स्रोत भोजन होता है। ठीक। सारे जीवों में वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तरह तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। उनके लिए तरह तरह के केमिकल की जरूरत पड़ती है, तरह तरह के यौगिकों की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो जो कंपोनेंट चाहिए, वो भी हमारे फूड ही जीवों की बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक जीवों की बात है, लिविंग बीइंग्स की बात है, तो आप सभी जानते हैं कि सजीव सिर्फ एनिमल के रूप में तो है नहीं। लिविंग बीइंग्स आर नॉट फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव ऑफ डिफरेंट काइंड, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंजाई, लाइक एल्गी, लाइक वायरसेस, and different kind of animals are there, unicellular organisms like amoeba,
paramecium, and multicellular organisms like humans, earthworm, birds, cattle, and so on. Every organ, every living being require food. You would be surprised to know all living beings obtain food directly or indirectly from plants. Plants are the only living beings, only organs that can prepare or produce food. No other organs than plants and some specific bacteria having chlorophyll in them. No other organs are available in this biosphere who can prepare their food themselves. So these organs are directly or indirectly dependent on the food prepared by the plants. क्या मतलब हो गया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स का क्या मतलब? There are some animals who directly eat plant or plant parts. They are called herbivores. So they directly obtain food from the body of plants, present in the body of plants. But there are some carnivore animals who never eat plant or plant part directly, but eat flesh. Do you know how these carnivores are able to get food from the body of animals? In the body of animals, that food is stored which they have obtained from plants. Some part of it herbivorous animals utilize in their functions and some are present in a stored form. That food is utilized by carnivore animals. This means ultimately carnivore animal is also obtaining food prepared by the plants. इसलिए मैंने कहा धरती पर बाकी सारे जीव पौधों को छोड़ के पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर हैं अपने जीवित रहने के लिए। इसीलिए हम इंसान भी, ह्यूमन बीइंग भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह के या पशुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह के क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग जरा देखें कितने तरह के क्रॉप्स हो सकते हैं और कौन कौन से उनके सोर्सेस हो सकते हैं जिनसे हमको फूड मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं फूड के 5 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड, प्रोटीन के फॉर्म में फूड, लिपिड के फॉर्म में फूड, विटामिन एंड मिनरल्स के फॉर्म में फूड। ये सब हमको प्लांट से ही देते हैं। Let us see the sources of food. Types of crops based on the type of food they provide.
एक cereals. This cereal is not like the cereal that we watch on TV. Here spelling it cereal. Cereals. These provide carbohydrate which acts as energy giving food. आप जानते हैं इनको किस क्रॉप से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है सबसे ज्यादा? इनके एग्जांपल राइस, जिसके प्लांट को बोलते हैं पैडी। क्या बोलते हैं? पैडी। देन wheat, sugarcane, etc. sugarcane नहीं, यहाँ ये देखो maize, etc. These are some example of cereals. इनसे एनर्जी मिलेगी। These are energy giving food. Next, crops are available in the form of crop plants, available in the form of pulse plants. Pulse plants. These are rich in proteins and provide body building components or normal growth and development. तीसरा oil seed plants. They provide lipid, also known as energy giving food, in the form of oil that can also be converted into fat. Fat is that form of lipid which becomes solid at temperature below 20 degrees centigrade. But oil is that form of lipid which remains in liquid form even at the temperature below 20 degrees centigrade.
So both wire and fat are collectively known as lipids. Wire shaped plants. These provide lipid as wire, ऐसे wire के रूप में once again we must write the examples first. Examples of pulse plants. Gram, pea, arhar, etc. There are so many plants. चना है, मटर है, अरहर है, ये सब. और these provide lipid as oil which is also an energy giving food. And help in various activities in the body. Common examples of wire-shaped plants are mustard. आपने अवश्य नाम सुना हो, सरसों. Sunflower, coconut, linseed, etc. Fourth is vegetable crops. Vegetable crops. Do you know the definition of vegetable? आपने बार बार पढ़ा है कि फूल का जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल, उसका जो बेसल पोर्शन ऑफ द ओवरी, उससे फ्रूट बनता है. लेकिन आपने ये कहीं नहीं पढ़ा कि वेजिटेबल किस पार्ट से बनता है. सच बात तो ये है कि वेजिटेबल्स आप पौधे के हर उस पार्ट को कह सकते हैं जिसको आप कुक करके खाते हैं. वो जल भी हो सकता है,
वो तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है, फूल भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है और फ्रूट भी। तो एनी एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट कैन बी ट्रीटेड एज वेजिटेबल। ये डेफिनेशन आपको कहीं बुक में नहीं है, लेकिन आप एग्जांपल से समझिए। When we eat carrot, radish, गाजर और मूली खाते हो, क्या है? गाजर मीठा हो जाने से फ्रूट तो नहीं हो जाता। पंडित जी कहते हैं कि फ्रूट हो जाता है, लेकिन है तो जड़। उसी तरह से मूली तो है जड़। आलू जो आप खाते हैं जमीन के नीचे से निकलता है, इसलिए वो जड़ तो नहीं हो जाएगा, वो तो है तना, स्टेम। और साग का आप क्या खाते हैं? बंदा गोभी का आप क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं। तो बोलो, जड़ भी खाया सब्जी के रूप में, तना भी खाया सब्जी के रूप में, पत्ता भी खाया सब्जी के रूप में, और कॉलीफ्लावर, फूल गोभी नाम है, तो उसका फूल ही तो खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में, है कि नहीं? और चना का क्या खाते हो भाई वेजिटेबल के रूप में? मटर का क्या खाते हो? छोला बना के और तरह तरह के व्यंजन बना के क्या खाते हो? सीड खाते हो। सही बात है। और कच्चा केला का सब्जी खाते हो, कच्चा कटहल का सब्जी खाते हो, पपीता का सब्जी खाते हो, क्या है? ये सब फ्रूट है। तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि पौधे का हर खाया जाने वाला भाग जो हम कुक करके खाते हैं उसको सब्जी कह सकते हैं, वेजिटेबल कह सकते हैं। और आपके सामने वेजिटेबल के अनगिनत उदाहरण है कि नहीं, जो हमको तरह तरह के विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। तो वेजिटेबल पे क्या लिखेंगे? दे प्रोवाइड वेरियस kinds of vitamins and minerals. लेफ्ट में डालते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। इनका एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो मन करे। कैबेज, स्पाइनच, बनाना, पोटैटो, etc। अनगिनत उदाहरण होंगे ये वेजिटेबल का। तो आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑन नेट क्लास। हैव अ नाइस डे। हमको लेफ्ट से लिखना है ना।